راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہم دونوں کی طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو جناب امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو خیریت سے رکھے، اور خاص طور پر عظمیٰ دعا ہے کہ سبھی سامعین اور ہم سب اطمینان سے بھرپور اور معمور رہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ عظمیٰ ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ کافی پریشانی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ پیاز بہت مہنگا ہو چکا ہے، آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہے، یعنی کہ ہم عام جو لوگ ہیں ہماری زندگی گزارنا کافی مشکل ہے، حالات کافی پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، حالات تو واقعی مشکل ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس قدر خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے ہم نے شاید ان حالات میں ہی ختم ہو جانا ہے۔ تو خدا جس نے ہمیں ہمیشہ سے سنبھالا تھا وہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں سنبھالنے پر قادر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے کہ دوسروں کو اور بری خبریں سنائیں، ہم ان کے ساتھ تسلی کی باتیں کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے بائبل مقدس کا ایک واقعہ کہ جب مقدس موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 12 لوگوں کو بھیجا کہ وہ کنعان کے ملک میں جائیں اور جا کر وہاں کا حال دریافت کریں، جاسوسی کریں، اس ملک کے بارے میں پتہ کریں، تو وہ لوگ جب واپس آئے تو ان میں سے 10 لوگوں نے آ کر کہا کہ کنعان میں تو بہت قدور لوگ ہیں اور ہم تو ان کے سامنے بالکل ٹڈے دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ تو ہمیں نگل جائیں گے۔ اور سارے اسرائیلی جو اس خبر کو سننے کے منتظر تھے، جب انہوں نے یہ سب سنا تو وہ زار زار رونے لگ گئے۔ اور لیکن ان میں 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ خدا ہمارے ساتھ اگر ہے تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جب اس ملک میں داخل ہوں گے ہم ان پر غالب آ پائیں گے۔ اور واقعی خدا کے لوگ خدا کی مدد سے اس ملک میں داخل ہونے پائے۔ جی، لہٰذا بات یہی ہے کہ حوصلہ افزائی یا مثبت باتیں جو ہیں وہ زندگی کا رخ تبدیل کر دیتی ہیں۔ مشکل بھی وقت آتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کو دلاسا دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں اور خدا کے فضل سے ہوتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہم خدا پر بھروسے کی بات کر رہے ہیں، خدا کے کلام کی بات کر رہے ہیں، تو آئیے پھر ہم تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ خداوند کی حمد کرو اے میری جان، خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ جی، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خدا بے کس کا، بیوہ کا، یتیم کا سہارا ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا مددگار ہوتا ہے۔ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور جب بھی ہم مشکل کا شکار ہوں ہمیں ہمیشہ ان کاموں کو یاد کرنا ہے جو خدا نے ماضی میں ہماری زندگی میں کیے۔ جب اس نے تب سنبھالا ضرور وہ اب بھی سنبھالے گا۔ تو ایسے خدا کی حمد و ثنا کرنا ہم پر واجب ہے۔ آئیے پھر خدا کی حمد میں بڑھتے ہوئے سنتے ہیں ایک حمدیہ گیت۔ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یار میرے خدایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یار میرے خدایا۔
मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुश्क साई। मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुश्क साई। अपने ज़मी जलाई, मेरी हाँ तेरा तिहाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा, यार मेरे खुदाया। मैं वेखा तेरी कुदरत, नाले तेरा जोर ते हशमत। मैं वेखा तेरी कुदरत, नाले तेरा जोर ते हशमत। जिया तेरे घर मुकद्दस विच मैनू नजरी आया। तड़के मैं तैनू ढूंढा, यार मेरे खुदाया। तेरी जो मेहरबानी, बेहतर के जिंदगानी। तेरी जो मेहरबानी, बेहतर के जिंदगानी। होवे मेरी ज़बानी, वड्याई भी खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा, यार मेरे खुदाया। राती जदों मैं सोना, तेरे ख्याल विच पाना। राती जदों मैं सोना, तेरे ख्याल विच पाना। तेरे परां दे हेठां खुश रहना खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा, यार मेरे खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा, यार मेरे खुदाया। तो सुन रहे थे सामीन हम बड़ा खूबसूरत और बाबरकत हमदिया कलाम। लेकिन उससे पहले हम के शामिल करें आप लोगों के खतूत को, मैं बताता चलूं कि जनाब आप अगर पहली दफा सुन रहे हैं तो जरूर अब मैं आपको पता बताई देता हूं। प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। और SMS या फोन कॉल के लिए नंबर हुआ करता है 0333 4825 और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, PCRM फैसलाबाद ये फेसबुक आईडी है। और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी और इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स पर आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। आप किसी भी तौर पर हमसे राब्ता करेंगे
यकीनन हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए फिर उस्मा, आपके पास तो ढेर लगा हुआ है खतूत का, मेरे पास भी बहुत से खतूत हैं, तो क्यों ना हम इनको शामिल करते चलें। जी वाकई ढेर लगा हुआ है, और ढेर को देखकर खुशी बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है नवीद अहमद साहब का, जो कि अफ्रीका से लिखते हैं। आप कहते हैं कि आज का प्रोग्राम सुना, कुदरत के करिश्मे बहुत पसंद आया, इसमें पौधों की अहमियत पर जो मालूमात दी गई वो बहुत अच्छी थी। आपके इस खूबसूरत कमेंट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राय वलायत अहमद खरल साकी साहब, जिनका ताल्लुक है जी सैयद वाला ननकाना साहब से, आप हमारे बहुत ही अजीज और बड़े प्यारे लिसनर हैं। और जनाब आपने कहा कि उज़्मा यूनुस और आदिल मुश्ताक भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा कि आगाज अच्छा था, खासकर स्ट्राइकी ड्रामा बहुत हमें पसंद आया, इसका सबक बहुत अच्छा लगा, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। खतूत आपको पसंद आए। और आपने कहा जी मेरा नाम क्यों नहीं शामिल किया जा रहा, तो जनाब मैं बड़ी खुशी के साथ और बड़े एक अच्छे जज्बे के साथ आपका नाम शामिल कर रहा हूं। और आप हमारे बहुत मोतबर और बड़े प्यारे भाई हैं, तो ऐसा कभी भी अपने जहन में ख्याल ना लेके आइएगा कि हम आपको भूल गए हैं या हम आपका नाम शामिल नहीं कर रहे। तो आपने इस बात में हौसला रखना है और आप इस बात में पक्के रहें कि आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं, बल्कि आप हमारे दिल के अंदर बसते हैं। बहुत शुक्रिया। अजमल बशीर मेतला साहब लिखते हैं भावल नगर से, और आप कहते हैं कि रीबा नईम ने बहुत प्यारी बातें की, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया, हमेशा की तरह कलाम को सुनकर बहुत अच्छा लगा और दिल को सुकून मिला। तो अजमल बशीर मेतला साहब इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिए, पसंद करते रहिए और हमें लिखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक मोमन रजा खोखर जी, मैं तो इनका नाम पहली दफा पढ़ रहा हूँ उस्मा, और ये मुजफ्फरगढ़ से हैं। और आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तिलावत कलाम मुकद्दस बहुत अच्छा है और मौसीकी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों के खतूत इनको भी बहुत पसंद आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा नाम जरूर शामिल करेंगे। तो मोमन भाई, मैं तो आपका नाम पहली दफा पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिल से खुशामदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जब भी हमें लिखेंगे, भेजेंगे, मैं जरूर जनाब आपका नाम भी शामिल करूंगा और इसी तौर पर हमारे जज्बात आपके लिए हमेशा कायम रहेंगे। थैंक यू सो मच। शहजाद अजीमी साहब लिखते हैं लाहौर से। आप कहते हैं कि आदिल मुश्ताक और उज़्मा यूनुस की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। और आप कहते हैं सराइकी ड्रामा बहुत अच्छा है, और आपने एक रिक्वेस्ट की है कि ड्रामा लिखने वाले और ड्रामा करने वालों के नाम जरूर बताइएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़े से वक्त में एक अच्छा पैगाम हम अपने लिसनर्स तक पहुंचा सकें, तो इस वजह से उनके नाम बताने के लिए हम माजरत करते हैं। और इसके अलावा आप कहते हैं मौसीकी का इंतखाब बहुत अच्छा था, आप बीती भी बहुत अच्छी लगी, और आपने सेगमेंट्स के दौरान जो गुफ्तगू की वो भी बहुत अच्छी थी। तो शहजाद अजीमी साहब, आपके खूबसूरत से मैसेज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमें इसी तरह से लिखना जारी रखिए। ख्वाजा सलीम वानी साहब है जी मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अच्छे और खूबसूरत इलाके से इतना प्यारा खत लिखा और आपकी शमूलियत के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं ख्वाजा साहब के आप इस मोहब्बत को जारी सारी रखेंगे, कायम रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफूर कैसर साहब, चौधरी फहीम नूर साहब और राना शमशाद अली लिखते हैं बहावल नगर से, और आप कहते हैं कि उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आप कहते हैं कि जोशवा जी की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत उम्दा और हर दिल अजीज प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने मैट्रिक के स्टूडेंट्स के हवाले से जो गुफ्तगू की वो हस्बे हाल थी, इसलिए हमें बहुत पसंद आई। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत सुनकर भी बहुत बरकत मिली। और आदिल साहब यहाँ पर एक ये सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं कि सिलसिला कुदरत के करिश्मे पीसीआरएम की एक उम्दा पेशकश है। मैं पूछना चाहूंगा कि ये उज़्मा यूनुस की ही आवाज है? जी हाँ जनाब, ये उज़्मा यूनुस ही की आवाज है और इसलिए हम बहुत से सेगमेंट्स, जैसे पहले भी एक सामे ने पूछा कि लिसनर पूछ रहे थे कि हमें नाम बताइए, तो हम सभी के नाम नहीं बताते, बल्कि पैगाम जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो बहुत शुक्रिया जी, और ये वाकई उज़्मा ही हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये आप तक इतना अच्छा सेगमेंट पहुंचा रही हैं। तो आपने इस सेगमेंट को लाइक किया, प्रोग्राम के दीगर तमाम सेगमेंट्स को लाइक किया, हमें मैसेज लिखा और हमेशा ही लिखते हैं, इसी तरह से लिखना जारी रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। चंद एक और मैसेजेस हैं जी। नवीद अहमद साहब हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहब, आपने
हमें बड़ी मोहब्बत के साथ खत लिखा, अपने सारे प्रोग्राम्स को पसंद किया, और मैं बताना चाहता हूँ खुशी के साथ कि मलिक अल्लाह बचाए खोखर साहब सब प्रोग्राम सुनते हैं और 300 से ज़ायद खत ये लिख चुके हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। इसी के साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा राना मोहम्मद हारून खान साहब का। इन्होंने कुछ शायरी भेजी है, तो चंद एक अशार मैं सभी की नज़र किए देता हूँ। लिखते हैं कि खुद अपने लिए बैठ के सोचेंगे किसी दिन, यूं कि तुझे भूल के देखेंगे किसी दिन। भटके हुए फिरते हैं कई लफ्ज जो दिल में, दुनिया ने दिया वक्त तो लिखेंगे किसी दिन। फिर कहते हैं हिल जाएंगे एक बार तो अर्श के दरोबाम, ये खाक नशीन लोग जो बोलेंगे किसी दिन। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी उम्दा शायरी आपने भेजी है और आपने शामिल किया इसको राह जिंदगी में, तो हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि जनाब आप अपनी इस मोहब्बत को इसी तौर पर कायम रखेंगे। थैंक यू सो मच। अभी वक्त है हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आप सबका पसंदीदा सा सेगमेंट जो कि इस वक्त पजीराई की बुलंदियों को छू रहा है, यानी कि सराइकी ड्रामा, आइए मिलकर सुनते हैं। ओए पुत्र रमजान, ओए खाड़वांजो मियां जरा खाड़वांज। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए भाई खैर तो है। ओए ई शरी गरीब ते कहीं कावड़ आ गई है तो आकू। ओ काका सही मैं वेच रिते कू, ए मेरे निवले पासे ता। ओए हाँ बाबा हाँ, ए तेरे निवले पासे है। ओए पर इंदी छां ता यार साडी सारियां दी सांझी है ता। ओए बल्कि पूरे वसेब दी सांझी है। ओ काका मैं आख्या जो है मैं को 4000 रुपए दा वेच बैठा। यार ओए जे ते को 4000 दी लोड़ है ता तू मेरे कुलू 4000 गिन गिनया, पर ए शरी ता नडा। ता ठीक है, वल तुसा 4000 में को देओ चा, शरी तुआडा थी गया। मेरा नहीं। ओए वल भी ए शरी असा सारियां दा होसी। ओए सांझा, ओए सब दा सांझा। क्या मतलब? देख मियां, ओए एक पासू ए तेरा दे रहा है ना, जी हाँ, ते अते दूजे पासू ए मेरा दे रहा है। हाँ आधे च एडा वड्डा ते छतरी आला शरी है, ठीक है ना? जी हाँ ठीक है, आखो आखो। ओए इकू ना तैं रहा अते ना मैं। ओए ई साडे वडगां दा रहाया होया है, ते भावें शायद आपे जम खड़ा होसी, पर इकू सांभ्या ता उन्हें होसी ता। जी हाँ तुसा आखो। ओए इंदी साविल बहारे च इंदे फुल्लां दी खुशबू अते गर्मियां च हाड़ बदरों दी धुप ते उकरासे ले इंदी ठड्डी छां च ओए असां सारे बांधे हैं तां। जी हाँ बांधे हैं। ते वल ओए भेड़िया जेड़े दरख्त साडे वर्गियां दी निशानी हैं, जेड़े साकू खुशबू ही वंडेंदे, साकू ठड्डी छां देंदे अते साडे जुग ते रल बहण दा मूजिब है, तू हूं को कप वेंदा पे हैं? काका सही ये गाल नहीं, ए गाल है कि तुम्हारा जेड़े भतीजा है ना रमजान खान, ई आखे जो मैं बनवावने कोठा ते शरीर बेच कर मेरे को पैसे वटले कर देवो। चाचा साईं मैं भी भाईजान को रोकम जो ए साडे देरे दा सिंगार है, इनको ना वञाओ, पर मेरी गाल वड्डे भिरा नहीं मनी। ओए यार शरीफ मियां, ओए तू ता कालेज दा पढ़िया है, ओए इन्ना को दस ना जो दरख्तां दी अते साविल दी अज साकू केडी लोड़ है। चाचा साईं मैं पूरी तकरीर कीती है जो अज हर पासे मिलां ते फैक्ट्रियां पारूं धुआं ही धुआं है, वल गाड़ियां दा धुआं ते मिट्टी धूड़ यक्का जहर घुलेंदा खड़े। चफेरूं अते इहे शोदे दरख्त हैं जेड़े ई जहरीली हवा को छाण के साकू साफ ते सेहतमंद हवा नसीब करेंदे, पर मेरी गाल कोई सुनदा ही नहीं। ओए सुनदा खड़े मियां करीम बख्शा, ओए मेरे भतरीजे ते अपने पुत्र दियां गाली के कोई ना। जिया मैं सुनदा खड़ा, पर अपना अच्छा हुण बाकी रह गई गाल तेरी, इवें ना? जिया ता ए घिन ए एक ए दू ते ए त्रै ते ए 4000 रुपए। खरा खरा ठीक है ता मैं हुणे फुटी दे पैसे घिन ते आंदा पिया, ए 4000 रमजान भतरीजे को दे चा।
ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀ ਇਹ ਖੜਾ ਰਾਵੇ। वाह जिंदाबाद चाचा फैज भाई साहब जिंदाबाद। तुसां तां चाचा साईं पढ़े लिखे लोकां को भी पिछू छड़ दिते। सच्ची गाल है चाचा साईं, जेकर तुसां पढ़े लिखे होंदे तां सच्ची गाल है बहु वड्डे अदीब ते लिखारी होंदे तुसां। एडा सोहना जहन, एडा साफ दिल अते एडी नफीस सोच, भाई वाह चाचा साईं एक वारी वल जिंदाबाद। पुत शरीफ यार ए घेना है 4000 रुपए नहीं अपने हत्था नाल अपने चाचे को दे चा। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸੁਣਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਪੁੱਤ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਅੱਬਾ ਸਾਈਂ, ਵੱਲ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਸਾਈਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਸਾਈਂ ਦੋਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਚਾ ਸਾਈਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦਰਖਤ ਰਹੇਸੂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਪੇਸੂ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਵਲ ਵਧੇਸੂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਘਟੇਸੂ ਕੋਈ ਨਾ इंशाअल्लाह। तो यकीनन दरख्त हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारी आबो हवा को ताज़ा रखते हैं, बेहतर रखते हैं, सेहतमंद रहने में भी बहुत मुफीद हैं क्योंकि ये खुद धूप बर्दाश्त करते हैं और हमारे लिए छांव का इंतज़ाम करते हैं। तो हमें दरख्त उगाने चाहिए और हमें इनकी कटाई से गुरेज करना चाहिए। अभी वक्त हुआ चाहता है हमारे बहुत ही मनपसंद और अच्छे एक सेगमेंट का जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आप बीती की तरफ और जानते हैं कि आज हमारे लिए क्या है। 10-12 साल पुरानी बात है। मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, अब भी वो मेरे करीबी दोस्तों में से एक हैं। जब उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो उन्होंने उन दिनों में जिक्र ना किया कि उन्हें क्या मुश्किल है फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की या फ़र्स्ट ईयर में दाखिला लेने की, और उन्हीं दिनों में वो कोशिश करते रहे कि किसी अच्छे कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उन्हें दाखिला ना मिल सका। कुछ उनकी घरेलू मुश्किलात थीं, कुछ उनके जो नंबर उन्होंने हासिल किए थे कुछ वो कम थे, और इसी कश्मकश में कोई 1 महीना गुजर गया। क्लासें जो नई थी वो शुरू हो चुकी थी। एक दिन वो मेरे घर आए, मैंने उनसे पूछा कि हाँ भाई दोस्त इन दिनों में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी होना क्या है, आपको पता है मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था, लेकिन अब मुश्किल ये बनी है मेरे लिए कि मुझे किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। कुछ घरेलू मुश्किलात थीं, कुछ रुपए पैसे का मामला था और कुछ और कई एक मामला थे जिनकी वजह से मुझे दाखिला नहीं मिल सका। तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हों, खुदा ज़रूर कोई ऐसा बंदोबस्त करेगा कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके। तो उन दिनों में मैं जिस कॉलेज में पढ़ता रहा अपने आबाई शहर में, वहाँ का एक प्रोफेसर इस शहर में जहाँ मैं अब काम करता हूँ, इस शहर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से वो काम कर रहे थे और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर फ़ोन पे मुझे कहा करते थे कि किसी दिन आप कॉलेज आएँ, कॉलेज को विज़िट करें, मेरे साथ बैठें, कोई बातचीत करें, कोई दोस्ती उनके साथ काफ़ी पुरानी थी। मुझे याद आया कि अक्सर वो जिक्र करते हैं कि कोई काम हो तो ज़रूर बताएं, तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, हम उनके पास जाएंगे। मुझे इस बात का यकीन था कि ज़रूर मेरी थोड़ी सी कोशिश से उसको ज़रूर दाखिला जो है वो मिल सकेगा। तो अगले दिन हम कॉलेज पहुँचे और ये खुदा का शुक्र है कि उस प्रिंसिपल साहब ने, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त भी थे वो, उन्होंने अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी और उस लड़के को जो मेरा अच्छा दोस्त था उसको उस कॉलेज में एडमिशन मिला। और इसमें जो मैंने उन दिनों में बात सीखी और अब तक मुझे याद है वो ये है कि मेरी थोड़ी कोशिश के साथ उस शख्स को उस कॉलेज में दाखिला मिला और उसके बाद उन्होंने फ़र्स्ट ईयर का इम्तहान पास किया, सेकंड ईयर किया, फिर उसने ग्रेजुएशन की और इन दिनों में वो एक अच्छे अदारे में अच्छे ओहदे पे फाइज है। और मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश ना करता और उसे दाखिला ना मिलता तो शायद आज वो इस मुकाम पर ना होता। और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ और जानता हूँ कि हर काम जो है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होता है और खुदा जिसको चाहता है उसको इज़्ज़त देता है, खुदा जिसे चाहता है उसे कामयाबी अता करता है, लेकिन तो भी वो हम ही में से लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि हम एक दूसरे की मदद करके किसी शख्स के लिए आसानी पैदा करें, किसी शख्स के लिए एक अच्छी राह निकालें। और मैं इस बात का अक्सर जिक्र लोगों से करता हूँ, जब भी कभी दोस्तों में बैठता हूँ तो इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूँ कि हम एक दूसरे का एहसास रखें, एक दूसरे की फ़िक्र करें,
ایک دوسرے کے لیے اگر ہم کوئی ایسا کام کر سکیں جس کی وجہ سے اس کو ترقی مل سکے، اس کو کوئی اچھا کام مل سکے، اس کی زندگی جو ہے وہ سنور سکے، تو ہمیں ضرور اس کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ جی، تو آج آپ بیتی میں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، اور عادل صاحب میں سوچ رہی تھی کہ دیکھا جائے تو ماں باپ ہمارا کتنا احساس کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر تو شاید کوئی ہم سے پیار ہی نہیں کرتا، تو ہم بچوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی فکر کریں۔ اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈے پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت مہنگا گفٹ چاہیے، ہماری برتھ ڈے بڑے ہی شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کرنی چاہیے، شادی بیاہ پر جانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بہت ہی مہنگا ڈریس لے کر دیں، ایسا پرس چاہیے، ایسی اینک چاہیے، تو ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان سارے اخراجات کو برداشت کرنا ایسے حالات میں۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کر تو دیتے ہیں لیکن اکثر اوقات مقروض ہو جاتے ہیں، پہلے ہی مشکل میں ہوتے ہیں لیکن مزید مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ یہ بات ہم سب کے ذہن میں، دل میں بیٹھ جائے کہ ہم نے ہمیشہ والدین کا بھی احساس کرنا ہے اور اپنے حالات کا بھی۔ تو چلیے ہم خداوند تعالیٰ کے حضور بھی یہی دعا کرتے ہیں اور مل کر ابھی اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس مشکل وقت میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ ہم پر بڑھائے رکھتے ہیں۔ خداوند ہم آپ سے التجا کرتے ہیں تمام تر لسنرز کے لیے، انہیں بہت برکت دیجیے، خداوند پاک خدا ان کی تمام تر مشکلات کو دور کر دیجیے اور ان کے کاروبار میں برکت فرما دیجیے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں حکمت اور دانش مندی سے معمور کر دیجیے تاکہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری اولاد کے لیے، ہمارے حالات کے لیے بہتر سے بہترین ہو اور ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں، آپ کی تابع فرمانی کریں۔ ہماری دعا کو سن لیجیے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔